Again, good morning, everyone. See, actually, the benefits that what I'm going to tell you right now. Good morning, sir. Good morning, everyone. Again, good morning. There should be some benefits of classes of spoken English, Miss classes of John, sir. I want to tell you that what kind of help that I'm going to give you. And please, voice को mute करो अपना. Voice को mute करो. See, from Monday, means next Monday, coming Monday, till lockdown. If the lockdown is over, class will be offline as usual. Whosoever now they come in offline classes, they are most welcome after the lockdowns. But till lockdown, as far as the Bihar lockdown is concerned, till lockdown, I just thought that there should be some different activities every day. And what kind of activities that I'm going to provide you from next Monday, that from coming Monday, that the benefits of joining this class, joining of this spoken English classes, I want to tell you. There will be three session classes. Three session. Number one, morning 7 to 7:40. Morning 7 to 7:40. It is completely a structure classes. A structure. What is a structure? What are structures? See, a structure that will help us to frame the sentences. Basically, as far as a spoken English is concerned, in spoken, that what kind of problem as we have? We have a problem in to frame the sentences. How can I frame sentences? If we know how to frame sentences, I don't think that we will have a problem in communication. Then the problem, whatever you have, according to sentence framing, it's now totally sorted out, because I have to start from Monday. That is one first session, that morning 7 to 7:40. That should be known as a sentence framing classes, structure classes. 40 minutes, completely a structure classes. तो मॉर्निंग में हम लोग 7 to 7:40 क्लास करेंगे स्ट्रक्चर का. तब बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे हम लोग उसमें. द बेसिक दैट मींस बेसिक, छोटे छोटे सेंटेंस को हम लोग फ्रेम करना सीखेंगे. दिस इज फर्स्ट सेशन. उसके बाद 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक होगा, जिसमें आप लोग थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे अपने आप को. उसके बाद सेकेंड सेशन मॉर्निंग 8 to 8:40. मॉर्निंग 8 to 8:40 ये हमारा क्लासेस होगा ग्रामर क्लासेस. क्या क्लासेस होगा? ग्रामर, जो मैं अब स्टार्ट कर रखा हूं. टेंस और वॉइस. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोडाल्स, पॉजिटिव वर्ब, infinitive, gerund, narration, past participle, participles, and all the things which is very much important in a spoken English. See, I am not teaching grammar here. I am teaching the use of all the grammar in a spoken English. Only that kind of grammar I am going to teach you all. That should be helpful only in communication, only in written, not in competitive. So this is our second hour classes. And now the most important, that is third hour classes, morning 9 to 9:40. 9 to 9:40. It will be completely group discussion, debate, daddy talk, mock interviews, role plays. Every day, some different kind of activities. It will continue in our third session classes. First session, a structure. Second, grammar session, and the third, group discussion. उसके बाद हम लोग फोर्थ सेशन भी रखेंगे. That should be known as a doubt classes. अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप फेस टू फेस अकेले व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग से आप पूछ सकेंगे. डायरेक्ट व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग से आप हमसे पूछ सकेंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा इन ग्रामर, इन स्ट्रक्चर, इन जीडी, इन डिबेट, व्हाटएवर द प्रॉब्लम. जो 20 मिनट्स का समय आपको मिलेगा जीडी के पहले, उसमें हम लोग टॉपिक दे देंगे. उस सेकेंड आवर क्लासेस में मैं आपको टॉपिक दे दूंगा. उसके बाद हम लोग 20 मिनट्स जो भी हम लोग तैयारी करेंगे
उसके बाद हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे ग्रुप डिस्कशन में, डिबेट में, 1 by 1 सबको मौका मिलेगा एंड everyone has to speak। तो ये बेनिफिट्स है जो मैंने आपको दिया था बेनिफिट्स, और इस बेनिफिट्स को फायदा उठाने के लिए आपको ऑनलाइन में, क्योंकि 3 सेशन में क्लास ले रहा हूं, तो आपको ऑनलाइन में वैसे कैंडिडेट्स जो एडमिशन ले चुके हैं उनको 100 रुपीज पर मंथ पे करना होगा, 100 पर मंथ, एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं। ये बेनिफिट्स मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को दूंगा जो हमारे इंटरेस्टेड होंगे। नंबर 2, न्यू कैंडिडेट्स, न्यू कमर जो हमारे यहाँ ज्वाइन करने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश, उनको पे करना होगा 999। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज कमेंट करें, अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन? समीक्षा, अंजू, प्रिया, श्वेता, साक्षी, सोनम, ज्योत्सना, समीक्षा, सुहानी, दीक्षा, अनामिका, शोभा, खुशी, तारा, आयशा, रितु, मनीषा, दीक्षा। आप में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सर नो डाउट सर। नहीं हो पाएगा सर। क्या? मेरा ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पाएगा, मतलब कोई दूसरा तरीका नहीं है सर? किसी से करवा दो। अच्छा ठीक है सर, ठीक, ओके। किसी से करवा करके उसका स्नैपशॉट ले करके नाम के साथ डाल देना। ठीक है सर। और कोई प्रश्न? जो मैंने क्लासेस के बारे में बताया आप लोग को कैसा लगा? क्या ये बेनिफिट्स होगा? साक्षी आप जवाब दीजिए, आप लोग का जवाब क्यों नहीं आ रहा है? यस सर, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत हेल्पफुल है। यस सर। लगा साक्षी बेटा हेल्पफुल है आपके लिए? यस सर। यस घर सर। में बैठ के तो पूरी हो रहे हैं ना, सुबह सुबह 10 बजे तक सब क्लास खत्म, आराम से एंजॉय करेंगे, दिन भर पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे। ये 3 सेशन में क्लास ले रहा हूँ। समीक्षा आप नहीं बोल रहे हो बेटा, सुहानी, दीक्षा त्रिपाठी नहीं बोल रही हो, ज्योत्सना नहीं बोल रही हो, खुशी अच्छा है सर। यस सर। कहा यस यस सर बोल रही हो? कोई मन में दिक्कत है तो क्वेश्चंस करो। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि जब तक लॉकडाउन रहे तब तक आपको थोड़ा सा सर ये कब से शुरू होगा? मंडे से बेटा। जितना लोग, जैसे कुछ लोग जो पेमेंट कर रहे हैं या करेंगे, धीरे धीरे फिर स्टार्ट हो जाएगा मंडे से। सर हम भी पेमेंट कर देंगे, थोड़ा सा इशू हो गया नेटवर्क का इधर, और मेरे अकाउंट में भी बैलेंस नहीं था, कोई इसलिए। दिक्कत नहीं, आपके पास संडे तक समय है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज थोड़ी मैं बोला हूँ कि आज ही कर दो, अभी जैसे क्लास चल रहा है वैसे चलेगा। ठीक है उसके सर, बाद संडे तक चला जाएगा। हाँ, संडे तक समय आप लोग के पास। देयर इज नो प्रॉब्लम कि आज करो कल करो, आपके पास कर सकते हो कभी भी। लेकिन करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट डाल देना होगा मेरे व्हाट्सएप में। ठीक है सर। Anyone has any question? समीक्षा नो बेटा, एनी क्वेश्चन सर। नो एनी क्वेश्चन सर। समीक्षा तू नहीं बोले बेटा, एनी क्वेश्चन? आप सर बोल ही तो रहे, सर जूम पे क्लास होगा। क्या बेटा? सर वो जूम पर ही क्लास होगा। मंडे को बताऊंगा, मंडे के पहले। ये 3 सेशन क्लास से चलेगी एवरीडे। सर तो ग्रामर शुरू से करिएगा ना? हाँ, ग्रामर 10 से स्टार्ट हुआ ना बाबू। सर जो आप वो मंडे से शुरू करेंगे वो तो शुरू से करेंगे ना? नहीं, ये जो चल रहा है ग्रामर तो इसी ढंग से चलता रहेगा। स्ट्रक्चर एकदम शुरू से होगा। सर तो ग्रामर नहीं ना हम किए हैं, इसलिए बोल रहे थे। स्ट्रक्चर जो क्या हुआ? सर ग्रामर मेरा शुरू नहीं हुआ था, इसीलिए बोल रहे थे। टेंस तुम नहीं पढ़ी हो क्या पूरा? नहीं सर, पूरा कहाँ पढ़े थे। क्या नाम है तुम्हारा? अंजू सर। संजू? अंजू। अंजू, अच्छा, नहीं पढ़ी थी। अंजू नमस्कार। अरे कैसी हो? नमस्कार। क्या समाचार है अंजू जी? अच्छे हैं। ठीक है सर। बहुत दिन के बाद। डेली आओ, एक दिन आती हो एक दिन नहीं आती हो क्लास करने। नहीं सर, क्लास तो कर ही रहे हैं। और सब मम्मी पापा ठीक है ना? हाँ सर, सब ठीक है। चलो ओके। चलो, वॉइस कल खत्म हो गया था ना बेटा? वॉइस में कुछ बाकी था कल प्रेजेंट यूनिट में? नहीं सर।
प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ वॉइस का बाकी रह गया था? नो सर। यस सर, HWO अफर्मेटिव हो गया था, सर नेगेटिव हो गया WH था, इंट्रोगेटिव क्या? WH क्वेश्चन तक हो गया था। हाँ, तो बस उससे अधिक नहीं होता। यस सर। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव और WH, बस यही होता है। यस सर। ठीक है, यस चलो कुछ सर। सवाल करूं मैं आज मैं सवाल करूंगा आप लोगों से, कुछ बनाओगे आप लोग? यस सर। यस सर। चलिए 1 by 1 आंसर देंगे। चलो, एक्टिव वॉइस है आई लूट, आई लूट, इसका पैसिव क्या बनाएंगे? समीक्षा बनाइए आप। I am आई एम looted. I am looted. Yeah, I am looted. Yes, sir. I am Very good. looted. Very I good. am looted. Yes, yes, I am looted. Right. Very good. Very good. चलिए नेक्स्ट है, एक तो ये है। सी प्लेस क्रिकेट, पैसिव बनाइए। C Cricket is Please. played by her. क्रिकेट इज प्लेड बाय हर। वेरी गुड, Cri- वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब क्वेश्चन है किससे? प्रिया भारती। प्रिया भारती आपसे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है, आई डोंट नो यू, आई डोंट नो यू, आई डोंट नो यू, You are don't know you. You are don't know me. इसमें आप कैसे बना रही हो? डोंट कैसे लगेगा? इसका वॉइस बनाना है ना, तो यहाँ पे यू आ जाएगा, तो यू के बाद फिर ढूंढते लगेगा, तो वॉइस थोड़ी हुआ ये। साक्षी, You साक्षी are नहीं, हो श्वेता जाएगा त्रिपाठी, श्वेता त्रिपाठी आप बनाइए। You are not know me. तब तो सुहानी आप बनाओ। मैं बना दूँ सर? हाँ, कौन है, बनाओ। You are not know me. यू आर नॉट, Yes नो sir. कैसे होगा? नो होगा। No cut short from you. You You are not known by me. Knew by me. You are not known by me. Known by me. हाँ, you are not known by me। थोड़ा सा मैं एक चीज आपको बता, अपडेट हो गया है। सर आप वीडियो ऑफ कीजिए। देखो एक अंजना पाठक है, सर आपका साउंड बहुत लो। देखो अगर इंग्लिश बेहतर बनाना है तो मुझे ये चीज इंप्रूव करना होगा। verb, that means word power। सर आपको आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। सर आवाज नहीं, सर आवाज नहीं आ रहा है। और सर दिख भी नहीं रहा है। सर दिख भी नहीं रहा है। सर बहुत दूर से आ रहा आवाज। सर आपकी वॉइस बहुत दूर से आ रही है। देखो तो, सर दिखने का तो दिख रहा है बट आपकी वॉइस बहुत दूर से आ रही है। सर दिख भी नहीं रहा है। अब आ रहा है, देखो। साउंड कम है सर। यस सर आ रहा है।
तो आप लोग नहीं। अपना अपना वॉइस को म्यूट कर दो। सर म्यूट होने के बाद भी आपकी वॉइस बहुत दूर से आ रही है। आशीष सबके वॉइस को म्यूट कर दो। तो अब आएगी अब आएगी। चलो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ब। ये जो वर्ब है ना, ये मुझे याद करना होगा किसी भी कीमत पर। वर्ब का कौन सा पार्ट आपको याद करना होगा? जैसे वर्ब का 5 पार्ट होता है। चलो तुमको आज हम वर्ब पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा वर्ब देख लो। अब वॉइस खत्म हो गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है, आवाज नहीं आ रही है? चलो ओके, चलो ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो देखो, जैसे मैंने टेंस का एक पार्ट पढ़ाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्लियर। वॉइस का एक पार्ट पढ़ाया, प्रेजेंट पैसिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट। इन दोनों में एक कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है? वर्ब। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अनुसार, उसके बाद पढ़ेंगे पैसिव ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस। बट थोड़ा इसमें हम लोग एक वर्ड जान ले, वर्ब। वर्ब दो प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 sort of verbs. Number 1, auxiliary verb. Number 1, auxiliary verb. Number 2, main verb. auxiliary verb, main verb. वर्ब्स दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। देखो, मैं वर्ब इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैं आपको कुछ लिस्ट भेजूंगा जो आपको रटना होगा। अगर आप नहीं सुनाएंगे तो मैं जूम ऐप में घुस करके मारूंगा आप लोगों को। आपको याद करना होगा, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा। इसको रटना होगा कुत्ते की तरह। किस चीज को? वर्ब को। क्योंकि मैं अभी देखा कि आप लोग जब वॉइस बना रहे हैं तो V3 बनाने में दिक्कत आ रही है, वो नहीं आनी चाहिए, इसलिए वो आपको रटना होगा। इसलिए मुझे मजबूरी में थोड़ा सा वर्ब को बीच में घुसाना पड़ा, क्योंकि ये भी हेल्प करेगा आपको टेंस में भी, वॉइस में भी। चलिए, ये है एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। तो एक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होता है। नंबर 1 होता है प्राइमरी एक्सिलरी। पहला क्या होता है? प्राइमरी एक्सिलरी। और दूसरा क्या होता है? मोडाल्स। प्राइमरी, मोडाल्स। प्राइमरी एक्सिलरी होता है और मोडाल्स होता है। प्राइमरी, मोडाल्स। प्राइमरी कितने होते हैं? तो कंप्लीट रूप से होते हैं ये 11। कितने होते हैं? 11। ध्यान से देखिएगा, 11 नहीं, सॉरी, 11 होते हैं। देखिए, डू, डज, डिड, is, am, are. Do, does, did, is, am, are. Was, were. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Has, have, had. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 हो गए क्या? एक्सिलरी वर्ब। कौन कौन? फिर से देखिएगा, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। ये हमारा हो गया एक्सिलरी वर्ब।
क्या हो गया? एक्सिलरी। एज फार एज मोडाल्स इज कंसर्न, तो मोडाल्स होते हैं कैन, कोड, मे, माइट, shall, will, should, ought to, must, can, could, may, might, shall, will, should, ought to, must, need, used to, dare, would. Clear? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गए 13, यानी 11 प्लस 13 इक्वल टू 24, यानी कुल मिलाकर के एक्सिलरी वर्ब होता है 24। ये हो गया एक्सिलरी वर्ब। क्या हो गया बेटा? एक्सिलरी। क्या हो गया बेटा? एक्सिलरी वर्ब। कितने? 24। कौन कौन? डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, has, have, had, can, could, may, might, shall, will, should, ought to, must, need, used to, dare and would। चलिए, any question? अभी मैंने मेन वर्ब्स को टच नहीं किया है, अभी मैंने मेन वर्ब्स को टच नहीं किया है, अभी सिर्फ बताया एक्सिलरी, फिर बताऊंगा मेन वर्ब्स। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। एनीवन? सर डेयर के बाद क्या लिखा हुआ है? यूज टू डेयर के बाद सर वुड। सर वुड है या कुड है? सर यूज टू के बाद क्या लिखा हुआ है? अच्छा सर नहीं दिख रहा। सर कुछ नहीं दिख रहा। सर कुछ नहीं दिख रहा। सर बहुत बफरिंग हो रहा है। दो। आप लिख करके क्वेश्चन पूछो, आई विल हेल्प यू। चलिए, नाउ इट्स कंप्लीटेड। मैसेज करें, इट्स नाउ कंप्लीटेड। क्या स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग? चलिए, चलिए अभी पढ़ा आपने एक्सिलरी, अब हम लोग पढ़ते हैं मेन वर्ब। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वर्ब, दैट इज मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब। क्योंकि जब वर्ब पर ही हमारा कमांड नहीं होगा, हम बोल ही नहीं पाएंगे। कैसे बोलेंगे? V3 बनाना है, ओ गॉड what should be the V3? Sorry, oh God, what should be the V2? No. अब जहां V2 बोलना है प्रॉब्लम, V3 बोलना है प्रॉब्लम, V1, V4, V5 में प्रॉब्लम नहीं होती। There is a problem only in V2 and V3। तो आज हम लोग जानेंगे मेन वर्ब। क्या जानेंगे बेटा? मेन वर्ब। और there are two types of main verb। मेन वर्ब होते हैं दो। एक होता है रेगुलर वर्ब। क्या होता है? रेगुलर वर्ब। दूसरा होता है इरेगुलर वर्ब।
रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। तो वर्ब का क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन रेगुलर और इरेगुलर? वर्ब के दो पार्ट, कौन कौन? एक्सिलरी और मेन वर्ब। कितने होते हैं एक्सिलरी? 24, लेकिन वो भी दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी और मोडाल्स। सेकंड मेन वर्ब, मेन वर्ब भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन? रेगुलर और इरेगुलर। इन सभी को 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 5। चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो। V1, V2, V3, V4 और V5। इसको भी हम लोग 5 भाग में डिवाइड करते हैं। किसको? रेगुलर और इरेगुलर दोनों को 5-5 भाग में। V1, V2, V3, V4 और V5। अब कहोगे सर दोनों तो एक ही हो गया, दोनों में तो 5-5 पार्ट है, V1, V2, V3, V4, V1, V2, V3, V4, V5। अंतर क्या है? तो लेट्स नाउ हैव सम वर्ड्स। हम एक वर्ड लेते हैं। क्या वर्ड लेते हैं? एक वर्ड लेते हैं। पहला लाइक इसके लिए लेते हैं प्ले। प्ले दैट मीन्स खेलना। एक वर्ड लेते हैं इरेगुलर के लिए, दैट इज गो। गो, प्ले, गो। अब इन दोनों में क्या अंतर है? नाउ अभी तक प्रॉब्लम हो सकती थी कि आखिर रेगुलर इरेगुलर में अंतर क्या है। तो लेट्स डिस्कस नाउ। कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, कितना अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे दैट व्हाट इज रेगुलर और व्हाट इज इरेगुलर, यानी व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन रेगुलर और इरेगुलर। लेट्स हैव नाउ। चलिए V1 और V1 दोनों में ले लिया, प्ले और गो। तो पहले बता दूं कि जैसे मनुष्य पैदा हुआ तो अपने साथ हाथ, पैर, मुंह, नाक लाया, मुंह लाया, हेयर लाया, आईब्रो लाया, टिथ लाया, लिप्स लाया। उसी तरह से जब भब्स पैदा हुआ, कौन पैदा हुआ? भब्स, तो अपने साथ वो टू लेके आया। क्या लेके आया? हम लोग पैदा हुए तो नाक, मुंह, कान सब लेके आए, लेकिन भब्स पैदा हुआ तो अपने साथ टू लेके आया। क्या लेके आया जी? टू लेके आया। यानी वर्ब 1 के पहले टू लगा होता है। क्या लगा होता है? टू। दैट इज कॉल्ड इंफिनिटिव। चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, उसको हम लोग कहेंगे इंफिनिटिव। क्या कहेंगे? इंफिनिटिव। किसको? वर्ब 1 के पहले टू लगा होता है। हम लोग के पहले नाक, मुंह, हाथ, पैर लगा होता है, लेकिन वर्ब के ठीक पहले टू लगा होता है। जहां पे V1 होगा वहां पे टू नहीं होगा, लेकिन जहां पे इंफिनिटिव लिखाएगा, क्या लिखाएगा? इंफिनिटिव। दैट मीन्स 2 + V1। 2 + V1 इक्वल टू इंफिनिटिव। 2 + V1 इक्वल टू इंफिनिटिव। चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, रेगुलर हो या इरेगुलर हो, दोनों में टू लगेगा। दिस इज कॉल्ड V1 एंड दिस इज कॉल्ड इंफिनिटिव। चलिए नंबर 4, V4। जितने भी वर्ब पैदा हुए हैं V4 में ING लगा के आते हैं। ING लगा के, यानी प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेइंग। और गो का हो जाएगा गोइंग। प्ले का प्लेइंग, गो का गोइंग। जैसे वर्ब पैदा हुआ तो अपने साथ टू लेके आया, आगे लाया, और पीछे क्या लेके आया? बैकबोन। यानी हम लोग बैकबोन है ना जी, ये बैकबोन है। उसी तरह से वर्ब के बैकबोन है कौन? ING है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जिरंड। क्या कहते हैं इसको? जिरंड। यानी वर्ब प्लस ING। वर्ब प्लस ING इक्वल टू जिरंड। क्या कहेंगे उसको? जिरंड। Like walking is a good exercise, a smoking is injurious to health, that is called जिरंड। क्या कहेंगे? जिरंड। ये हमारा हो गया V1 और V4। V1 और V4। As far as V5 is concerned, अगर V5 की बात करते हैं तो S या ES लगेगा। अब यहां प्रॉब्लम है कि S कहां लगेगा और ES कहां लगेगा। तो चलिए मैं बताता हूं आपको। S लगेगा अगर वर्ब का
लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट हो, जैसे देखो PLAY, वाई क्या होता है? कॉन्सोनेंट। अगर वर्ब का लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट हो तो एस लगाते हैं, और अगर वर्ब का लास्ट वर्ड वॉवेल हो तो एस लगाते हैं। तो गो का क्या हो जाएगा? गोज। क्यों? क्योंकि यहां पर गो GO, ओ क्या है? वॉवेल है। ओ क्या है? वॉवेल है। तो गो के बाद क्या लग गया? ES। और क्या? कॉन्सोनेंट के बाद क्या लगेगा? S। वॉवेल के बाद क्या लगेगा? ES। ये हो गया V5। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा V1, V4 और V5। क्या पढ़ा? V1, V4 और V5। फर्स्ट आशीष वॉइस को अनम्यूट कीजिए। यस सर। सर आप ही का वॉइस म्यूट हो गया है। हो गया। आपको कोई क्वेश्चन है? नो सर। सर है सर एक क्वेश्चन। एक बार श्योर मेरे टेलीग्राम पर आप मैसेज करेंगे, मैं आपको डाल दूंगा। अगर दिक्कत होगा तो इसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार देखिएगा, आप हो जाएंगे क्लियर। जिसको डाउट है क्वेश्चन कीजिए। एनीवन? सर वो प्ले में फोर में क्या लिखे हैं? प्लेइंग है, प्लेइंग। V4 मतलब और जिरन होता है। हर और 5 में का प्लेज। ING लगा देंगे। प्ले का प्लेइंग, गो का गोइंग, सिंग का सिंगिंग, डांस का डांसिंग, एक्ट का एक्टिंग, ईट का ईटिंग। क्लियर? यस सर। बस सर जब रेगुलर वर्ब और इनरेगुलर वर्ब में डिफरेंट क्या है? अभी कहाँ बताया बेटा? अभी तो सिर्फ 3 ही चीज बताया है। अभी तो मेन बाकी है V1, V2 और V3 बताना। मैंने इन सभी में क्वेश्चन पूछने के लिए कहा। कोई दिक्कत हुआ अभी तक इन सभी में? नहीं सर। चलिए तो वॉइस नो सर। वॉइस को म्यूट करो आशीष। चलिए अब देखो, व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन रेगुलर और इरेगुलर? रेगुलर और इरेगुलर। देखो, इरेगुलर जिस वर्ब का V2 और V3 अलग अलग हो। गो का V2 क्या होगा बेटा? वेंट। V3 क्या होगा? गॉन। गो, वेंट, गॉन। दैट इज कॉल्ड इरेगुलर वर्ब। क्या कहेंगे इसको? इरेगुलर वर्ब। जिस, ध्यान से फिर से सुनिएगा, ध्यान से, समय कम है, ध्यान से सुनिएगा। जिस वर्ब का V2 और V3 अलग अलग हो, V2 और V3 अलग अलग हो, दैट इज कॉल्ड इरेगुलर वर्ब। ये टोटल होते हैं 190। इसको आपको रटना होगा किसी भी कीमत पर। There is no rule according to the grammarian and the linguistics that they have made such a rule to memorize and to remember this V2 or V3. No, you have to remember at any cost. आपको रटना होगा as a parrot, go, went, gone, come, came, come, sing, sang, sung. रटना होगा। कितना रटना होगा? मात्र 190। 200 से नीचे होता है 190, मतलब 195 या 93, 94 होगा। मैं आपको लिस्टिंग करके भेज दूंगा। मैं भी कभी कोचिंग गया नहीं हूं, मैं जाऊंगा तो मैं आपको लिस्टिंग करके भेज दूंगा। बट मेरे पास होगा, मैं उसको श्योर भेज दूंगा। आपको रटना होगा। चलिए, ये हो गया इरेगुलर। अब रेगुलर क्या होता है भाई? तो जिस वर्ब का V2 और V3 सेम हो। प्ले का हो गया प्लेड और प्लेड। प्ले, प्लेड, प्ले, प्लेड, 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 प्लेड। अब देखिए हम लोग कैसे इसको जज करेंगे विच वन इज रेगुलर और विच वन इज इरेगुलर। ये तो क्लियर है, ये तो रटना पड़ेगा। ये क्या है? देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, एकदम ध्यान से माइंड में रखिएगा। माइंड में जितने भी मतलब
नाम को छोड़ करके, नाम को छोड़ करके, अगेन नाम को छोड़ करके जितने भी नाउन हैं वो वर्ब है। नाम को छोड़ करके जितने भी नाउन हैं वो वर्ब है। जैसे अभी हाथ में आपने थाम रखा है पेन, पेन मतलब क्या होता है? कलम। बट अकॉर्डिंग टू वर्ब पेन मतलब होता है रचना करना। क्या होता है? रचना करना। अभी आप किस चीज पर लिख रहे हैं? कॉपी। कॉपी मतलब क्या होता है? कॉपी। बट कॉपी एक वर्ब भी है, इसका अर्थ होता है नकल करना। कॉपी मतलब नकल करना और कॉपी मतलब कॉपी। अब बाल कैसे करते हैं? कॉम्ब। कॉम्ब मतलब क्या होता है? कंघी। लेकिन कॉम्ब मतलब कंघी करना भी होता है। आपने क्या पहन रखा है? ड्रेस। ड्रेस मतलब ड्रेस भी होता है। और आई एम ड्रेसिंग, आई एम क्लॉथिंग। क्लॉथ मतलब क्लॉथ, क्लॉथ मतलब कपड़ा पहनना। ड्रेस मतलब ड्रेस और ड्रेस मतलब ड्रेसिंग करना। ड्रेस मतलब ड्रेसिंग करना। बाद में क्या लगाते हैं? हरा, ब्लू, पीला, नीला। तो ये क्या है? कलर। कलर मतलब कलर और कलर मतलब रंगना भी होता है। दीवार में क्या लगा हुआ है? पेंट। पेंट मतलब पेंट और पेंट मतलब पेंट करना। लव मतलब प्यार, इश्क, मोहब्बत और लव मतलब प्यार करना भी होता है। हेट मतलब नफरत और हेट मतलब नफरत करना भी होता है। तो जिस नाउन का वर्ब बनता है वो दैट इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब। क्या कहलाएगा वो? रेगुलर। क्या कहलाएगा? रेगुलर। जैसे वाटर मतलब पानी। वाटर मतलब क्या होता है? पानी। और वाटर मतलब पानी होता है और वाटर मतलब पानी पटाना भी होता है। प्लांट मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। और प्लांट मतलब पेड़ पौधा रोपना भी होता है। दैट इज कॉल्ड रेगुलर। वॉइस को म्यूट कीजिए, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। चलो कोई क्वेश्चन है?